Hello friends, again we are starting with the basic mathematics. I have already uploaded all the lessons of your basic mathematics of semester 1. Now we are starting with the new series that is of revision lecture. Revision lecture in that also the difficult sums which you find it. जो भी sums difficult है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं that for that we are having a video. So this is a revision lecture का video है and we are starting with the lesson number 4 that is of your profit and loss. Profit and loss में page number 4.8 का sum number 10 we are doing today. So let us read the sum. पेज नंबर 4.8 है, आप देख सकते हो यहाँ पर, एंड सम नंबर 10 दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस का रिविजन लेसन चल रहा है. द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग विद द क्वेश्चन नंबर 10. ओके, ABC are partners in business with capital of 50,000, 40,000 and 30,000. C get 20% of the profit for managing the business. Rest is divided into the ratio of the capitals. And at the end of the year, C gets 4,000 more than the B. Find the profit and share of each of the following. Now, let us understand the question first. What is the question says? No doubt the question is very big. So, they might ask, may not ask, but let us do the sum. Three partners with a capital of 50, 40 and 30,000. And what is the first condition here? That the C is getting the 20% profit for managing the business. Now, C is getting the 20% of the profit. So let us start the sum. C gets 20% of profit. 20% meaning 20 upon 100, that is the 0.2 part of the profit. Right? So he is giving the 0.2 part. Now, all the partners are having their capital. So what is the ratio of the capital of the partner? Ratio of capital of partner A is to B is to C. Right? Three partners है A, B, C. उनका रेशियो क्या होगा? A का कैपिटल है 50,000, B का कैपिटल है 40,000 एंड C का है 30,000. Just cancel last 4 0. You will get 5 is to 4 is to 3. This is your capital, right? Profit and loss में जैसे करते हो वैसे ही करना है. Now, what is the remaining profit? So remaining profit let the profit be 1. 1 minus 0.2. तो कितना बचेगा? 0.8. 0.2 C को मिलेगा प्रॉफिट और जो बच गया 1 में से तो 0.8 profit will be divided among A, B, C. Okay. Now what is the next condition is given? That C gets the 20% of the profit for managing the business and rest is divided into the capital. So 0.2 profit है किसके लिए? Managing the business के लिए. He might be doing the admin part, तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा 0.2 और 0.8 एज अ पार्टनर उससे मिलेगा. नाउ ए शेयर इन द प्रॉफिट, किसका उसका रेशियो क्या है? 5 to 4 is to 3. So A gets प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट में से? 0.8 में से 0.8 into 5 upon 5 plus 4 9 plus 6 5 upon 2. Get it? Calculate. 0.333, right? It is 0.333. He is going to get the profit in that share is 0.3. Now let us go for the B share. B share in profit. Profit हमारा वही 0.8. 0.8 into B का शेयर क्या है? 4 upon 12. Let it calculate. How much comes? 0.266 part of the profit. Okay, this is part of it. Now C share. Now यहाँ पर जो C का शेयर क्यों है? क्योंकि he is a partner. तो C share in profit. C को 2 बार प्रॉफिट मिलेगा because one managing business के लिए और दूसरा जो है वो प्रॉफिट के लिए. तो उसका शेयर क्या है? 3 upon that is 0.8 into 3 upon 12. 0.2. Okay, 0.2. Okay, this is the part of the profit all again. Now C का total share कितना हो? देखो C is getting one part here and this is his second part. So total share of C
इज 0.2 प्रॉफिट प्लस 0.2 प्रॉफिट, 2 बार मिल रहा है तो 0.4, सी का अकेले का शेयर है 0.4. नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, सी गेट्स 4000 मोर देन द बी. बी को जितना मिलेगा प्रॉफिट उससे 4000 ज़्यादा किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है, राइट. सो सी का शेयर कितना है 0.4 प्रॉफिट इज इक्वल टू सी इज गेटिंग मोर बाय हाउ मच, बाय 4000. किससे ज़्यादा मिल रहा है, सी से, बी से ज़्यादा मिल रहा है. तो 0.266 बी का शेयर प्लस 4000 ज़्यादा, बी से 4000 ज़्यादा. मतलब अगर बी को 100 रुपया मिल रहा है, अगर इफ और सपोज बी इज गेटिंग 1000, ये 1000 तो उसको 4000 ज़्यादा, मतलब टोटल मिला के होगा 5000. वैसे इसलिए 0.226 में हमने क्या किया, 4000 रुपीज़ ऐड कर दिया, राइट. नाउ दिस इज पी, shift this side, 0.4p minus 0.266p is equal to 4000. How much getting? Minus करो. 0.134. Right? 0.134 profit is equal to 4000. So P is equal to 4000 divided by 0.134. Profit कितना मिलेगा बता दो. How much the profit you are getting is rupees 29,850. Rupees 29,850 is your profit. Okay. Now very simple. 29,850 तो हम लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 30,000, राउंड अप कर दिया. राउंड अप फिगर इज 30,000. नाउ व्हाट इज टू बी डन, अभी सबको अपना अपना शेयर दे देना है, राइट. सो A share in the profit. A का शेयर कितना था हमारे पास, A is getting the share how much, 0.333, right. 0.333, right, into how much is profit, profit मतलब 30,000. 0.333 into 30,000. How much getting? 9,900. He is getting 9,090. Now B को कितना मिल जाएगा? 9,990. 9,990. Okay, almost around 10,000 rupees. Now B share is how much? 0.266 P. 0.266 P की वैल्यू हमारे पास 30,000. 798. एंड सी शेयर, सी का शेयर हमारे पास टोटल देखो 0.4 P, थर्ड पे देखो आप 0.4 P, 0.4 P into 30,000 rupees 12,000, right. So everybody is getting the share in the 12,000. आप इसको राउंड अप करके रुपीज 8,000 में लिख सकते हो एज ए राउंड अप, और इसका राउंड अप करके रुपीज 10,000 लिख सकते हो, राइट. दिस इज योर राउंड अप, सबका राउंड अप आ जाएगा. ओके, सो वेरी लिटिल बिट ऑफ बिग सम, बट इफ यू अंडरस्टैंड द सम इट इज क्वाइट इजी. आपको खाली शेयर निकाला है, तीनों का जो रेशियो दिया है उसमें आप उसको प्रॉफिट दे दो 0.8% से माइनस करने के बाद, क्योंकि प्रॉफिट सपोज 1 रुपये, तो 1 में से 0.2 माइनस किया तो 0.8. 0.8 जो प्रॉफिट है वो इसको दे दो, 0.8 इंटू 5/12, 0.8 इंटू 4/12, 0.8 इंटू 3/12. आ गया. सी को 2 बार प्रॉफिट मिलता है, एक बार मैनेजिंग द बिजनेस के लिए और एक पार्टनर के प्रॉफिट में, तो उसका टोटल शेयर 0.4. गिवन कंडीशन क्या दिया हमारे पास, गिवन क्या है that C is getting, मतलब C is getting more, how much, 4,000 of B, तो B से उसको ज़्यादा मिले, तो B का जो प्रॉफिट है वो प्लस 4,000 ज़्यादा इज इक्वल टू C's प्रॉफिट. C का प्रॉफिट है, कैलकुलेशन करके आपको प्रॉफिट मिल जाएगा. राउंड अप कर लिया 30,000, फिर वही हमारा A का प्रॉफिट 0.33 P, B का और C का मल्टीप्लाई करके विल गेट द राउंड अप. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. Okay, now we are starting with the sum number 8. I'll read the question. Same page पर है.
मैन्युफैक्चरर सेल इज आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट टू द होलसेलर. मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल किया 20% प्रॉफिट से. होलसेलर सेलिंग टू द रिटेलर एट 25%. होलसेलर ने रिटेलर को सेल कर दिया 25% प्रॉफिट में. अभी रिटेलर किससे सेल करेगा? ऑब्वियसली कस्टमर को. कितने परसेंट प्रॉफिट से? 40%. सो द रिटेलर सेल टू द कस्टमर एट 40% फॉर 175. 175 के प्राइस में उसने 40% अपना प्रॉफिट रख के सेल कर दिया. फाइंड द कॉस्ट प्राइस टू द मैन्युफैक्चरर. तो ये पूरी सेलिंग की चेन है, राइट. दिस इज अ चेन रिएक्शन कि जैसे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर. तो एवरीवेयर दे हैव देयर ओन प्रॉफिट. तो और ओरिजिनल प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का कि वो उसने 175 में बेचा और उसको भी 40% प्रॉफिट मिला. होलसेलर को भी प्रॉफिट मिला है, मैन्युफैक्चरर को भी प्रॉफिट मिला है. एज यूजुअल सम चालू करेंगे. लेट कॉस्ट प्राइस भी रुपीज 100, राइट. आपका कॉस्ट प्राइस है 100. एक्स मतलब जो भी प्रोडक्ट है आपका उसका. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन गिवन? अ मैन्युफैक्चरर सेल्स at what percent? 20% profit. 20% profit to wholesaler. होलसेलर को वो सेल कर रहा है. ओके, इट्स अ राइट. 20% मीनिंग 20 upon 100, 0.2x. Okay, now but एक्चुअल प्राइस क्या है? 100. तो आप 100 प्लस आप 20 करो तो भी चलेगा. 120 अपॉन 100 क्या आ जाएगा? 1.2. आप 100 का भी करके ऐड करोगे 0.2 में तो भी आ जाएगा. और स्पेल और लिख देती हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो. 0.2 में आपने 100 को दैट इज 100% करके 1 रुपी करके 1.2 भी करो, या सीधे 100 प्लस 20 करके 120 अपॉन 100 तो आपको 1.2x आ जाएगा. एनीथिंग इट इज. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन इज गिवन कि होलसेलर इज सेलिंग टू रिटेलर. अ होलसेलर इज सेलिंग टू रिटेलर. नाउ रिटेलर के पास क्या आ रहा है? कितने परसेंट प्रॉफिट में? 25% एंड 25% ऑफ प्रॉफिट, राइट. अभी 25% ऑफ प्रॉफिट किसका? किसका? 0.2, दैट इज 0.2 उसका प्लस 100 का मिला के कितना आया? 1.2x. तो 25% प्रॉफिट ऑफ 1.2. क्यों? क्योंकि होलसेलर के पास जो गुड्स आए वो कौन से रेट से है? 1.2, 120 के रेट से. 100 रुपये की चीज मैन्युफैक्चरर 20 रुपीज प्रॉफिट ऐड करके करेगा तो कितने का होगा वो? 1.2x. तो होलसेलर के पास वो जो प्रोडक्ट आई है वो कितने रेट पर है? 1.2. 1.2 इंटू कितना? आपका 25% प्रॉफिट. कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 1.2x इंटू 25%. आपको मिल जाएगा 0.3x, राइट. 0.3x. देखो दिस इज योर चेन रिएक्शन जैसे बोलते हैं वैसे. वी नाउ नेक्स्ट वन. अ रिटेलर इज सेलिंग. रिटेलर सेल्स टू कंज्यूमर एट 40% प्रॉफिट, राइट. अभी कौन कर रहा है? कंज्यूमर को आएगा 40% प्रॉफिट. 40% प्रॉफिट किसका? 40% प्रॉफिट ऑफ योर 1.2x प्लस 0.2, क्योंकि दोनों का जो है उसके बाद उसको 40% प्रॉफिट. सो 1.2x प्लस 0.3x इंटू 40%. तो टोटल इसका क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5. Okay, so I repeat again, it is a 1.2x plus 0.3x, that is 1.5x into 40%. अभी इसका 40% निकालो. क्या 0.6 आ रहा है? Okay, fine. It is 0.6, right. Now what the that retailer is doing, वो 1.5x का उसका जो कॉस्ट है उस पर वो अपना प्रॉफिट ले रहा है. सो नेक्स्ट वन इट इज
1.5x की चीज पर वो 0.6 प्रॉफिट लेगा, कितना आएगा? 2.1. 2.1x 2.1x। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिटेलर है वो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर्स के उसके पास है, तो ये दोनों को ऐड करके उसके पास आया वो प्रोडक्ट कितने रेट में? 1.5x में। उस पर उसने अपना 40% का प्रॉफिट लगाया, तो वो कितना होगा? 0.6x। मतलब इसके लिए 1.5x दोनों का मैन्युफैक्चरर, होलसेलर प्लस रिटेलर का शेयर मिला के कितना वो प्रोडक्ट की प्राइस हो गई? 2.1x, राइट। नाउ 2.1x वो कितने में सेल कर रहे हैं? 175। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? क्योंकि x हमने लिखा है कॉस्ट प्राइस का, तो 175 अपॉन 2.1 83.33। आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 83.33, उसका उसने 175 मतलब 80 का डबल 160 से भी ज़्यादा रेट में उसे सेल किया, तब जाके उसको 40% प्रॉफिट मिला। फिर मैन्युफैक्चरर को अपना 20% प्रॉफिट मिला और होलसेलर को 25%। आया समझ? बताओ कॉस्ट प्राइसेस to the manufacturer is 83.100 to the manufacturer। मतलब मैन्युफैक्चरर ने ये प्राइस में मैन्युफैक्चर किया था, फिर उसने सेल किया होलसेलर से, रिटेलर ने कस्टमर को, तो सबका प्रॉफिट मिला के वो प्रोडक्ट की प्राइस हो गई थी 175, पर एक्चुअल रेट था किसका? 83.30, राइट। सो हाउ इज टू बी डन? वन मोर टाइम जस्ट रिकैप। 20% प्रॉफिट मतलब 1.2 100 और 20, यहाँ पर मैंने 0.2 लिखा है, वैसे लिखो, या 120 ऐड करके 120 अपॉन 100 कर दो 1.2x। होलसेलर के लिए वो चीज़ आई 1.2x में, उस पर उसने अपना 25% प्रॉफिट लगा दिया, तो आ जाएगा 0.8। फिर रिटेलर ने क्या कर दिया? उसने अपना 40% प्रॉफिट लगाया, तो किस पर? 1.2 प्लस 0.3, मतलब दोनों को ऐड करो तो 1.5x, तो उसके पास वो प्रोडक्ट आई कितने में? 1.5x में। उस पर उसका प्रॉफिट आया, तो 40% करो तो कितना? 0.6, मतलब 1.5x प्लस 0.6 मिला के 2.1x का कॉस्ट प्राइस हो गया उसके लिए, और उसने बेचा 175 में, तो मैन्युफैक्चर का रेट आ गया 83.33। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। Okay, now we are starting with the sum number 13, same page 4.8. I'll read the question. A merchant purchased rice worth rupees 16,500. One third of the rice was partly damaged and had to be sold at 10% loss. Find the percentage of profit at which he would sell the remaining stock so that he will make the 20% profit. Question is divided into two parts. आपके जो मर्चेंट के पास राइस है उसमें 1/3 डैमेज है एंड 1/3 इज इन अ गुड कंडीशन, आई मीन 2/3 इज इन अ गुड कंडीशन, राइट। सो लेट अस स्टार्ट द राइस प्रोड्यूस्ड या राइस प्रोडक्शन। राइस प्रोडक्शन हमारे पास कितने का है? रुपीज 16,500 का। इसमें 1/3 इज योर डैमेज, खराब कंडीशन में, स्मॉल कंडीशन है 1/3, तो 2/3 क्या आ जाएगा आपका? मेरा गुड रहेगा। नाउ 16,500 का 1/3 करो एंड 16,500 का 2/3 करो। 1/3 करेंगे तो आपका आएगा 5,500, राइट। दैट इज अ गुड कंडीशन, डैमेज कंडीशन, और 2/3 करोगे तो आ जाएगा 11,000। ओके, now what is the given condition? That damaged goods they are selling at a 10% loss. Damaged goods sold at 10% loss. वही हमारी मेथड हो जाएगी। लेट CPV 100। अगर आप वीडियोस कंटिन्यूसली देखते होंगे तो यू माइट बी नोइंग द सेम मेथड वी आर डूइंग। लेट CPV 100। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100, लॉस है तो 100 माइनस 10, कितना आ जाएगा? 90। ओके, नाउ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 90, हमारे कितना है यहाँ पर? 5,500। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, राइट। कॉस्ट, ये हमारा 5,500 कॉस्ट प्राइस।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 5500 इंटू 19 अपॉन 100, तो सेलिंग प्राइस आ गया ₹4950 आ रहा है, ₹4950 is the selling price. Okay, done. Now what they are saying that 16,500 के जो goods है, he want how much at the rate of 20% profit. Okay, so again let CPB rupees 100, उसमें उसको प्रॉफिट कितना चाहिए 20%. सो सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो आपको 20 ऐड करोगे, इट इज़ 120. कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस. ओके, लॉस होगा तो माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस. कॉस्ट प्राइस अगर आपकी 100 है, 120 सेलिंग प्राइस. आपको एक्चुअल कितना है आपका कॉस्ट 16,500. फाइंड आउट करो सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, अगर उसको यही अमाउंट पे चाहिए तो 19,800 रुपीज़, राइट. इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए 19,800. ओके, सो वी हैव डिवाइडेड द सम इनटू टू पार्ट. एक आपका जो लॉस डैमेज वाला पार्ट है वो, और दूसरा पार्ट है आपका जो विच इज इन अ गुड कंडीशन. गुड मतलब टोटल राइस प्रोड्यूस. तो अगर 16,500 का उसको प्रॉफिट चाहिए 20%, तो उसकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए थी 19,800. बट टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ राइस क्या है 4950, तो उसका स्पॉइल हो गया. 4950 is a spoil part. Now to find the profit, what we will do, let the selling price of the article, let selling price be y, right. तो प्लस y इज इक्वल टू टोटल कितना आ जाएगा 19,800. मतलब क्या हुआ कि आपका जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का कितना होना चाहिए 4950, आप माइनस करो क्योंकि आपका तो वो डैमेज वाला पार्ट है. देखो हमने डैमेज वाला का निकाला है, तो y इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू माइनस करो तो क्या आएगा 19,800 माइनस 4950. सो y इज इक्वल टू हाउ मच कमिंग टू इट, माइनस इन जर्मनी इट विल बी 14,850, राइट. इट विल बी 14,850. तो अगर उसका आप माइनस करोगे डैमेज पार्ट, इट विल बिकम 14,000. नाउ टू फाइंड द प्रॉफिट, व्हाट इज द प्रॉफिट. अभी हमें प्रॉफिट फाइंड करना है. नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट का है. टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, सो परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. आपका सेलिंग प्राइस कितना था, अभी देखो हमने क्या फाइंड किया, सेलिंग प्राइस कितना है 14,850 माइनस आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, जो अच्छी वाली जो गुड कंडीशन का हमें कॉस्ट प्राइस देना होगा 11,000 अपन 11,000 इंटू 100 माइनस करके डिवाइड बाई 11,000 करो, आपको मिल जाएगा 3850 अपॉन 11,000 इंटू कितना आ रहा है 35%. You are getting profit percentage to be how much 35%. So find the percent of profit at which he would sell the remaining stock so that he will make the 20% on the whole. मतलब 20% के लिए उसका वो प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा 35%, तब जाके विल बी एबल टू गेट द 35%. ओके, सो सम वापस थोड़ा बहुत बढ़ा है क्योंकि आपको डैमेज एंड गुड कंडीशन दोनों की प्राइस फाइंड करके डैमेज वाले का सेलिंग प्राइस फाइंड करोगे. गुड कंडीशन मतलब जो टोटल राइस प्रोडक्शन है उसका 19,800 सेलिंग प्राइस आ गया. अगर आपको गुड कंडीशन वाले में से माइनस करोगे आपका लॉस, तो आपको आ जाएगा सेलिंग प्राइस 14,850. 14,850 का अगर आप सेलिंग करोगे उसमें से आपका गुड कंडीशन माइनस करो तो आपको कितना 35% ऑफ द प्रॉफिट आ जाएगा, राइट. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. Thanks for watching, thanks for subscribing, and make sure कि if you keep on subscribing तो आपको notification भी आता जाएगा. Thanks for watching.